Welcome to your channel for creative studies. Today we will be discussing about BEGC 134 paper, and we would analyze the paper of how to answer the questions. As you can see here that today we have some set of questions related to BEGC 134 और उसको हम लोग कैसे करके आंसर करेंगे और कैसे करके हम लोग अप्रोच करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द BEGC 134 question paper of term end December 2021. If you haven't seen it, please do see that as well. So let's start. So first question is narrative. So if you see, there is the question, answer all questions, section A, write short notes in about 100 words each. So there will be short note type of questions. So as you can see, the first question is narrative. So I would just get you to the book of where you can find it. It's in block 1 unit 2, that is subcontext 2.4, page 29. So let's go on to block 1. So before going on to page 29, if you can see, this is page 17 and this is about keynotes glossary. Okay, and within this glossary you can see what is a narrative. So narrative is of having the nature of narration in story form, a story or account. Okay, so let's go on to the answer and how you can write the questions answer. I will get you towards the answer in the book that's there. Which is in page 29. As you can see, narrative modes is here. Now how to approach this answer? You have to actually write a short introduction, what is narrative. Now you can write that it is like a story form as it's written here. You can see a story is how the story is told, and a story is something that is merely told. So it is a narrative form. Now you have to give an introduction, a short introduction, because it's of just 100 words each. So since it's a short note question, so you can write narrative and the types of narrative mode. Just give a short introduction of what is narrative mode, and then you can give third person narrative mode and first person narrative, and then give just one example. So that would be it. Okay, next question is, if you go on to the next question, mostly the questions of short answers is from block 1 unit 1 to 4. So you will find the short notes mostly from block 1. So you need to be very good in reading these things. You just need to understand that. So new trends in fiction writing, the second question is that is in subcontest 3.5, page 42 and 43. Okay, so let's go on to that. So that is block 1 unit 3. Okay, block 1 unit 3, and let's go on to block 1 unit 3. और अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे स्टाइल हुआ, लास्ट ईयर भी स्टाइल के रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे. यू डू नॉट हैव टू कॉपी वर्ड बाय वर्ड, बट आपका मेन जो चीज़ है वो आपको देख के ही आप समझ पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, न्यू एरियाज़ ऑफ नोवेल राइटिंग. तो ये वाला क्या है, फिक्शन राइटिंग के ऊपर में जो है न्यू ट्रेंड्स इन फिक्शन राइटिंग. या अगर आप देखोगे वेस्टर्न फिक्शन के ऊपर में यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, तो आप इसको पूरे अच्छे से अगर खुद समझ के फिर अच्छे से लिखोगे तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा. तो इसमें फिक्शन राइटिंग कैसे करके इवॉल्व हुआ और कैसे करके न्यू चीज़ इस्तेमाल किया गया, यही चीज़ इसमें बताया गया है. और ये बहुत अच्छे से बुक में बताया गया है. अगर आप देखोगे ये वाला 3.5 में, ठीक है, न्यू एरियाज़ ऑफ नोवेल राइटिंग, यही सेम चीज़ है, न्यू ट्रेंड्स इन फिक्शन राइटिंग के ऊपर में ही है. जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरेक्टराइजेशन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का, कैरेक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पर थोड़ा गलती है क्वेश्चन में, दोनों 4 दिया गया है बट इट इज़ एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन। सो कैरेक्टराइजेशन, पार्डन, सो कैरेक्टराइजेशन कैसे करके हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी फिर से क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दैट इज़ ऑन सब कॉन्टेक्स्ट 2.3.2। ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 2 में है, पेज 25 और 26 में। ओके, और ऐसे करके ये आपको आंसर करना है, थोड़ा आपको समझना है और फिर उसको समझ के उसको बताना है। जैसे यहाँ पर नरेटिव मेथड और ड्रामेटिक मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब चीज़ देख लेना। और यहाँ पर जैसे कैरेक्टराइजेशन के ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कैरेक्टराइजेशन को अच्छे से आप वो चीज़ को समझाओ। इसको यहाँ पर दिया गया 25 और 26 में, आप इस पर एग्जाम्पल्स या राइटर्स के ऊपर में भी अगर दोगे तो बहुत अच्छे से ये आंसर फ्रेम होगा। याद रखिएगा ये 100 वर्ड्स का ही है, तो आपको खाली एक इंट्रोडक्शन देना है कि कैरेक्टराइजेशन क्या है, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन में क्या यूज़ होता है और कैसे करके कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता है, उसी को कैरेक्टराइजेशन बोला जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन को समझाना है। और लास्ट जो है, अगर आप देखोगे इस कॉन्टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है थीम। सो थीम के ऊपर में भी हम लोग बता देंगे। अगर आप देखोगे ये सब सारा चीज़ ब्लॉक 1 के रिलेटेड ही है। तो अब हम लोग आते हैं थीम पे। तो थीम का अगर आप देखोगे तो ये पेज 40 और 41 है, जो कि सब कॉन्टेक्स्ट 3.4 है और ये ब्लॉक 1 यूनिट 3 में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा से अगर आप रीड करोगे, देखो ये टाइम एंड प्लेस एंड स्टाइल लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट्स में। अगर आप दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्ज़ाम का देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब थीम के यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, थीम्स अराइज फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको थीम क्या है इसके बारे में बताना है 100 वर्ड्स के अंदर में, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब सेक्शन बी में यहाँ पर क्या किया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करके दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 350 वर्ड्स यहाँ पर दिया गया है, ये कुछ भी वर्ड्स हो सकता है, शायद 500 to 600 भी वर्ड्स में भी हो सकता है या 400 वर्ड्स में भी हो सकता है, क्योंकि कारण ये है कि ये 20 मार्क्स का है। अगर आप दिसंबर 2021 में का पेपर भी देखोगे तो वो 20 मार्क्स करके ही दिया गया था। तो 12 मार्क्स या 20 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे करके स्प्लिट करके दिया जाता है। शायद सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके शायद दो 12 मार्क्स करके क्वेश्चन दे दे और 20 मार्क्स करके भी क्वेश्चन दे सकता है। तो स्प्लिट करके वैसे ही टाइप का रहेगा, बट आपका तीन ब्लॉक्स है जो कि आपका नॉवेल्स के ऊपर में है, उसमें से 2 आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसी में से अगर 2 आप बहुत अच्छे से करके गए और एक बैकअप आप रीड करके जाना सब चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब सेक्शन बी में। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 350 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम इन द सिमिलैरिटीज़ और पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन केट चॉपिन एंड एडना पॉन्टलियर इन द अवेकनिंग। ये आपका ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है। चलिए अब आपको हम लोग ब्लॉक 2 में लेके जाते हैं। ये आपका पहला नॉवल है, जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया व्हाट इज़ नॉवल, उसके बाद तो ब्लॉक 2 में हम लोग आ गए। यहाँ पर ही है ब्लॉक 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.6, ब्लॉक 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.6, ठीक है। एडना पॉन्टलियर और केट चॉपिन क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये वाला जो ब्लॉक 2 यूनिट 2.6 यहाँ पर पेज नंबर 21 और 22 है, ठीक है। तो ब्लॉक 2 यूनिट 2 के ऊपर में है और आपको बताना पड़ेगा कि सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो केट चॉपिन और एडना पॉन्टलियर का जैसे था सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है। जैसे केट चॉपिन का भी 6 चिल्ड्रन थे, तो उसको कैसे करके केट चॉपिन का भी चिल्ड्रन था और एडना पॉन्टलियर का भी चिल्ड्रन था। तो इंडिपेंडेंस और वुमेन के बारे में बताया गया, वुमेन्स फ्रीडम के बारे में बताया गया है। तो अगर आप अच्छे से अगर केट चॉपिन का भी अगर लाइफ बिब्लियोग्राफी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, क्योंकि हर एक नॉवेल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यू ऑल्सो हैव टू राइट नो अबाउट द राइटर और वो कौन से एज में दिया गया, तब आपको पता चलेगा कि कैसे करके वो लिखा था और क्यों वो लिखा था, व्हेन एंड फॉर व्हाट रीज़न दैट राइटर हैज़ रिटन दैट नॉवल और अ पीस ऑफ लिटरेरी आर्ट, ठीक है। तो ये लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों और कब कैसे एक राइटर लिखा है, तो व्हाट वे द रीजंस एज वेल। तो एक बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझाया गया। तो एडना पॉन्टलियर और केट चॉपिन का है ब्लॉक 2 यूनिट 2
सब कॉन्टेक्स्ट 2.6 ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा अपने से भी ऐड कर सकते हो। याद रखना, इसको पूरा याद नहीं करना है, इसको आपको समझना है। 2-3 बार आप रीड करोगे, सारा चीज़ आप याद नहीं कर सकते हो, तो आप अपना ये सब चीज़ को अच्छे से समझ लेना रीड करके, फिर उसको अपने लैंग्वेज में भी आप देने से भी वो चलेगा, उसमें और अच्छा होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को आप चेंज नहीं करोगे बट अपने लैंग्वेज में आप बताओगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट थिंग्स फॉल अपार्ट ऑल्सो अपील्स टू रीडर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये वाला आपका ब्लॉक 4 का आंसर ब्लॉक 4 में आपको मिलेगा, और ये वाला एक यूनिवर्सलिटी उसका सब कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ब्लॉक 4 का। ये सब कॉन्टेक्स्ट 4.3 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले से ही आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपका पेज 47 में आई थिंक सो है, 48 और 47। ठीक है, अब यूनिवर्सलिटी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सलिटी के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है। इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि ये नॉवल जो है वो नेशनल बाउंड्रीज़ में रीच करता है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि इट इज़ ये एक अफ्रीकन था। ठीक है, अफ्रीकन नॉवल था, तो इसमें कैसे करके पोस्ट कॉलोनियल नॉवल एक है। तो आप इसको अच्छे से इंट्रोडक्शन हिसाब से बता सकते हो। प्री कॉलोनियल लाइफ, पास्ट प्री कॉलोनियल लाइफ के ऊपर में बताया गया है, ये पूरा अच्छे से दिया गया है। 4.3 में यूनिवर्सलिटी, ये 48 तक आपको पढ़ना है। और फिर अगर आप लेटेस्ट सम अप में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट, अचीवे ऑल्सो बिल्ड्स इनटू हिज एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी a universal element that sets the book from fetters of time and place. The novel is about human predicament itself. This makes things fall apart, specific and universal at the same time. ठीक है, तो इसके बारे में ये आंसर दिया गया है, जो कि पेज 47 है और ब्लॉक 4 यूनिट 4 में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉन्ग्स इन पराजा। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका ब्लॉक 3 यूनिट 3 में मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं ब्लॉक 3 यूनिट 3 में। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ब्लॉक 3 यूनिट 3 का अगर आप देखोगे अगर आप ब्लॉक 3 यूनिट 3 में अगर आप आओगे तो 3.3 द थीम ऑफ पराजा। ठीक है, इसी में आपका है थीम ऑफ पराजा के नीचे में, थोड़ा सा ही नीचे में आपका आंसर मिल जाएगा। सॉन्ग्स के ऊपर में पूरा बहुत अच्छे से दिया गया है, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है आंसर। ठीक है, पेज 34 से थर्ड आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, पेज 34 का लास्ट पार्ट से अगर आप देखोगे तो सॉन्ग्स एंड डांस से यहाँ से लेके स्टार्ट होके पूरा ये वाला जो पार्ट है कि सॉन्ग्स, सिंगर्स एंड राइटर्स, ये सब पूरा सॉन्ग्स है। तो आप ये क्या कर सकते हो कि आप तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, लाइक लव सॉन्ग्स है, फिर वर्क सॉन्ग्स है। ठीक है, ये सब चीज़ का आप सब चीज़ तो याद नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, बट आप क्या कर सकते हो, शायद ये जो मेन जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे पकड़ लो कि लव सॉन्ग्स हुआ, वर्क सॉन्ग्स हुआ, फेस्टिवल सॉन्ग्स हुआ, इसका शायद 4 लाइन आप याद कर सकते हो, फर्स्ट 4 लाइन, या जो आपको इजी लगे वैसे ही टाइप का कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लेना। और यहाँ पर होने के बाद आप यहाँ तक इसको रखना। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा, जहाँ पर सॉन्ग्स के बारे में राइटर डज नॉट एक्सप्लेन दी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सॉन्ग्स, यहाँ तक रहेगा। तो मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ कहाँ तक ये रहेगा। ये पेज 39 का जस्ट ऊपर में है, अगर आप देख लोगे ये लास्ट जो है पराजा सॉन्ग के बाद ही है। तो ये वाला चीज़ है, आप ये जो मेन जो हेडिंग है एटलीस्ट ये चीज़ को याद ज़रूर कीजिए कि कैसा टाइप का सॉन्ग्स यूज़ होता था, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स वर देयर। ठीक है, जैसे फेस्टिवल सॉन्ग्स था,
ठीक है, ये सब चीज़ को आपको बताना है। एटलीस्ट मेन जो हेडिंग जो अंडरलाइन है, अगर आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपको ये समझाना तो है ही क्योंकि सॉन्ग्स कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ से लेके यहाँ तक, बट आपको इसको फ्रेम करके अगर थोड़ा एग्जांपल्स अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में आते हैं इस चीज़ का। तो मैं यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को और कैसे करके आप लिखोगे। बहुत सारा चीज़ आपको बुक में मिलेगा, बट आपके ओन वर्ड्स में भी उसको फ्रेम करना है। और आपको पहले तो समरी बहुत अच्छे से समझ लेना है, और उसको समरी को समझने के बाद आप अगर हो सके तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कीजिएगा, स्पेशली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आपको पहले क्या करना है, हर एक नॉवेल का आपको नॉवेल कौन सा है, उसका राइटर कौन सा है, ये सब चीज़ का इंट्रोडक्शन में मेंशन करना एकदम ज़रूरी है, स्पेशली 20 मार्क्स क्वेश्चन का, क्योंकि ये नॉवेल है। और स्पेशली अगर बैकग्राउंड टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको बैकग्राउंड क्वेश्चन में भी आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसको फिल करना है आंसर को, आपको वो समझाना है कि कहाँ से ये लिया गया है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। और उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हो, अगर वो बैकग्राउंड है या आपका कोई कंपैरिजन है तो ठीक है, बट आप ये चीज़ बता दीजिएगा कि दिस इज़ टेकन इन दिस, अगर वो कितना टाइप ऑफ नॉवल है, ये आप जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए दे सकते हो ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, और अगर हो सके तो आप पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर आप इग्नू में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो अगर आप पॉइंट में या अंडरलाइन करके अगर आप आंसर लिखते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जैसे सिंबलिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंबलिज्म अगर हुआ या कोई भी चीज़ का बहुत सारा पॉइंट्स है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, अगर टाइम मिले तो उसको पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं आप। बट वो ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट ज़रूरत है कि नहीं, ये क्वेश्चन में भी आपको देखना है। ठीक है, बट आप उसको आइदर बोल्ड लेटर्स में हो या अंडरलाइन करके हो या उसको पॉइंट फॉर्मेट में हो या बुलेटेड फॉर्मेट में हो, कुछ करके उसको प्रेजेंटेबल दिखाना है आंसर में। लास्ट क्वेश्चन जो है, वुड यू अग्री दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज जस्ट अ सिंपल स्टोरी और द राइज एंड फॉल ऑफ वन मैन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अगर आप देखोगे ये वाला चीज़, ये वाला आपका पेज 46 और 47 में था। अगर आप आंसर देखते देखते अगर देखोगे, पेज क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट ऊपर में वो था, ब्लॉक 4 यूनिट 4 में था वो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ब्लॉक 4 यूनिट 4 में। अगर आप देखोगे आंसर्स बहुत डायरेक्ट है। ठीक है, जो भी सब कॉन्टेक्स्ट आपका है उसी से ही आपका ज़्यादातर आंसर्स आता है, तो आपको बहुत अच्छे से जस्ट उसको समझना है, यू हैव टू रीड इट। ठीक है, एक आंसर को अगर आप कोई भी सब कॉन्टेक्स्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ को 2-3 बार करके रीड करना है। और ये याद रखिएगा, स्पेशली ये ब्लॉक 4 वाला जो पार्ट है, इसका 3rd यूनिट 3 और यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट दैट अगर आप थिंग्स फॉल अपार्ट का कर रहे हैं तो यूनिट 3 और यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ को समझना है। ठीक है, अब ये सिंप्लिसिटी का यहाँ पर है, ये अगर क्वेश्चन में ही आप देखोगे कि इज़ जस्ट अ सिंपल स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वन मैन, यहाँ देखोगे थिंग्स फॉल अपार्ट अपीयर्स टू बी ऑन द फेस ऑफ इट अ सिंपल टेल ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑब्स्टिनेट मैन। अब यहाँ पर बताया गया है, आपको खुद से अपने हिसाब से भी उसको लिखना है। और यहाँ पर अगर देखोगे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जस्ट सब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में है 4.2 का, जो कि पेज 46 से लेके आपका ऑल्दो यहाँ पर 47 तक ये जाएगा, 48 तक ये जाएगा। ठीक है, 47 से लेके 48 तक। तो यही ऐसे करके ही आपको अप्रोच करना है आंसर्स को, और आशा करते हैं कि आप समझ पाए कि कैसे करके इसको अप्रोच करेंगे। थोड़ा बहुत आपको खुद भी फ्रेम कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम में आपको सारा क्वेश्चंस आप याद नहीं कर पाएंगे, बट आपका बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना पड़ेगा। आप जितने अच्छे से उसको रीड करिएगा उतने अच्छे से ही आपका होगा। मिनिमम 2 आपका याद होना ही चाहिए नॉवेल्स में, तभी आप आंसर्स कर पाइएगा। अगर आप सेम कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बताया था कि वहाँ पर और भी ऑप्शंस रहेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 2 आपका बहुत अच्छे से होना ही होना है आपका नॉवेल्स। एक नॉवल आप उसको अच्छे से अगर रीड करके भी जाए तो यही आप उसको, अगर आपका बाई चांस आपको क्वेश्चन दूसरा नहीं आता है तो आप उसको ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो BGC 134 के रिलेटेड। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर शेयर करें, और हमारे ऐसे ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड हैव अ नाइस डे।